I request all the devotees to please pull your mobile out or and put it on silent mode. डिफिकल्ट महाराज का वो नहीं है. Okay. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudiraya Nasta Prayeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistaki. So we are approaching the auspicious day of Nrsimha Chaturdasi. So we're going to be speaking about the pastimes of Prahlad Maharaj this evening. Who's translating? सब समस्या है बताइए प्लीज. हिंदी में चाहिए. क्योंकि हम सब नरसिंह चतुर्थी के उत्सव पर सभी पहुंच रहे हैं, तो आज हम लोग प्रहलाद महाराज के बारे में कुछ श्रवण करेंगे. So Prahlad Maharaj, very important personality, and Lord Chaitanya Mahaprabhu spent a lot of time hearing about the pastimes of Prahlad as well as Dhruva Maharaj. They were the two favorite personalities who Lord Chaitanya liked to hear about. तो प्रहलाद महाराज एक बहुत महत्वपूर्ण एक भक्त हैं, जिसे चैतन्य महाप्रभु प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज के बारे में बहुत श्रवण किया करते थे. So Prahlad is described in 7th canto Srimad Bhagavatam, and we hear about Prahlad. He was born, of course, in the family of a demon. His father was a great demon named Hiranyakasipu. तो श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में हम लोग श्रवण करते हैं उनके बारे में, और उनका जन्म एक असुर परिवार में, उनके पिता का नाम हिरण्यकश्यप था. There are two types of nature as described in Bhagavad Gita. There is Daivi Sampat and Asuric Sampat. तो दो प्रकार के स्वभाव के बारे में बताया गया भगवद गीता में, एक दैवी संपत और आसुरी संपत. So Prahlad was born in the family of the Asuras. By birth, he was in the family of Asuras, but he was a great devotee. और प्रहलाद महाराज आसुरी परिवार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन बाल्यकाल से ही वो एक बहुत महान भक्त थे. So it's very important to understand that birth is not the deciding factor about who is devotee and who is not. तो ये बहुत महत्वपूर्ण समझना कि इसीलिए हम लोग कुल से, किस कुल में हमारा जन्म हुआ है, ये कोई निर्णात्मक हमें तथ्य देता नहीं है कि हम भक्त हैं या नहीं हैं. So Prahlad Maharaj, being born into that family, he was sent to get education, and he was sent to the school with all the other asuras. प्रहलाद महाराज का जन्म होने के पश्चात उनके पिता के द्वारा वहां पर जो विद्यालय था वहां पर उनको भेजा गया, और उस विद्यालय में कौन थे? सारे असुर के ही बच्चे और असुर स्वभाव वाले लोग थे. And in the school for the asuras, they were learning a lot of materialistic subject matters. और वहां पर जो कि आसुरिक स्वभाव के लोग थे, तो वो सब लोग
भौतिक विषय के जो भौतिक विषय वस्तु हैं उसके बारे में ज्यादा, काम अर्थ इसके बारे में ज्यादा चर्चा कर रहे थे. They were learning what we would call karma kanda, dharma, artha, kama, moksha. This is the business actually of materialistic people. तो वो विशेष रूप से जिसको हम लोग कर्म कांड कहते हैं वो सीख रहे थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष. विशेष रूप से ये जो भौतिकवादी चेतना के लोग होते हैं वो इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करते हैं. So Prahlad, from his birth, he was not interested in these things. और प्रहलाद महाराज जन्म से ही इन सब चीजों में उनकी कोई रुचि नहीं थी. Because when he was in the womb of his mother, at that time, he had the opportunity to hear from great devotee Narad. क्योंकि जब वो अपनी माता के गर्भ में थे तभी उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था, अवसर प्राप्त हुआ था, सुअवसर, कि वो महान भक्त नारद मुनि के द्वारा उन्होंने भगवत कथा का श्रवण किया था. So although he was in this Gurukula, which was for the asuras, he was not interested in what they were teaching. तो हालांकि वो गुरुकुल में थे जहां पर की सभी आसुरिक शिक्षाएं दी जा रही थी, लेकिन प्रहलाद महाराज को आरंभ से ही उसमें कोई रुचि नहीं थी. So Srimad Bhagavatam describes how one day the two sons of Sukracharya, they're named Samba and Amarka. They were both sons of Sukracharya, and they were the teachers of the boys in the Gurukula. And they were the ones to teach them all this dharma, artha, kam and moksha. तो श्रीमद् भागवत में बताया गया कि संदा अमरका जो शुक्राचार्य के पुत्र हैं वो इस गुरुकुल के शिक्षक थे, और यही वो कर्मकांड का जो ज्ञान था, विशेष रूप से धर्म अर्थ काम मोक्ष, चतुर्थ पुरुषार्थ जिसको कहते हैं, वो उनकी शिक्षा उनको वहां पर देने का प्रयास कर रहे थे. So the teachers, after teaching the lesson for some time, they went home and they left the boys to play. And the boys, the sons of the asuras, they had different toys and things they wanted to play with. And they were telling Prahlad, come and play. तो जब शिक्षक पढ़ा करके कुछ समय जब बीच में अवकाश हुआ करता था, जैसे विद्यालय में होता है, तो उस समय सारे बच्चे, और वहां पे बहुत से उनके खेलने के लिए खिलौने दिए गए थे, तो वो सब बच्चे जो खेल रहे थे, आश्रित बच्चे, वो प्रहलाद को भी बुलाते थे कि प्रहलाद आओ हमारे साथ में खेलो. But Prahlad, he was not interested to play with them. He was kind to them, and he just smiled at them and said, "No, I'm not going to play with you." लेकिन प्रहलाद महाराज को उनमें कोई रुचि नहीं थी. वो मुस्कुराते थे, उनकी बातों को सुनते थे, उनके साथ खेलने में उनको कोई रुचि नहीं थी. So the boys, they liked Prahlad. They thought he was very kind and caring, and so they came around Prahlad and they asked him, you know, why you don't play with us? You know, we're all boys, we're all young boys. Why you don't play with us? You're the only one who doesn't play with us. Why? Why you not playing with us? प्रहलाद महाराज का इतना मधुर स्वभाव था कि वो सारे जो उनके मित्र थे उनको वो बहुत प्रेम करते थे. तो सब उनके पास में आकर के बोले कि प्रहलाद, आप क्यों नहीं हमारे साथ में खेल रहे हैं? सब सारे बालक खेल रहे हैं, आप क्यों नहीं आ रहे हमारे साथ? So Prahlad called the boys and said, just sit down, I will tell you. तो प्रहलाद महाराज ने सबको बोला कि ठीक है, आप ऐसा करो कि सब बैठ जाओ, मैं आपको कुछ बताऊंगा. So in this way, Prahlad begins his teachings to the sons of the asuras. तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने फिर वो सभी जो आसुरिक बालक थे उनको शिक्षा देना शुरू किया. Now, although these boys are sons of the asuras, they're just children, so their hearts are still quite clean. तो हालांकि वो असुरों के बच्चे हैं, उसी हिरण्यकशिपु के राज्य के जो असुर थे उनके बच्चे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो बालक हैं इसलिए उनका हृदय जो है वो अभी भी
उतना विकार नहीं आया है और आसुरी प्रवृत्ति उतनी प्रबल नहीं हुई है। It's a very good time to teach children when they're young that you can put very deep impressions in their heart. तो महाराज बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है कि ये जो बालक का जो बालपन है, ये बहुत उचित समय है जब उनके हृदय के अंदर बहुत गंभीर ये तत्व, ये सिद्धांत और ये स्वभाव उनके अंदर उसको प्रेरित किया जाए। You know, the things we do when we're children, we'll remember throughout our life. क्योंकि बाल्यकाल में ऐसा प्रभाव पड़ता है हमारी चेतना के ऊपर, ऐसी छवि बन जाती है कि वो पूरे जीवन भर हमें स्मरण रहता है। And we have examples. Not only Prahlad was like this, but Srila Prabhupada himself had that kind of childhood. तो और हमारे समक्ष और भी उदाहरण हैं, केवल प्रहलाद महाराज ही नहीं, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महाराज संघ के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद वो भी बताते हैं अपने बाल्यकाल के बारे में। Srila Prabhupada, as a young boy, he used to see his father worshipping the deities every evening. श्रील प्रभुपाद जब बाल्यकाल में थे तो देखते थे कि किस प्रकार से, वो लिखते भी हैं कि कैसे मेरे पिताजी वो भगवान की सेवा करते थे, विग्रह की घंटी बजाया करते थे, तब मैं उठता था। And his father encouraged him in the devotional activities. He had him learn to play mridanga when he was just a small boy. और उनके पिताजी ने उनको अलग अलग जो अंग हैं भक्ति के उसको सिखाना आरंभ किया, उनको मृदंग बजाने के लिए प्रेरित किया जब वो बहुत छोटे से बालक थे। The family at one point wanted to send him to London to become a lawyer, but the father said, no, I don't want my son to become a materialistic person. उनकी माता और बाकी परिवार के सदस्य लोग उनको लंदन भेजना चाहते थे जिससे कि वो एक बैरिस्टर बन सके, वो लॉयर बन सके, वकील, बड़े वकील। लेकिन प्रभुपाद जी के पिता ने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि राधा रानी के भक्त बने, वो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। Even Prabhupada told us, he said one time when he was a child, he was sick and they brought the doctor. A doctor said, oh, you have to give your child chicken soup. प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक बार जब वो बाल्यकाल में उनको ऐसे कॉलरा की बीमारी हो गई थी, तब उस समय डॉक्टर लोग आए तो उन्होंने कहा, डॉक्टर ने, कि इनको बालक को चिकन का सूप देना होगा पीने के लिए। So they were shocked because they were pure vegetarian. He said, well, we never cook. And the doctor said, if you don't give him chicken soup, child will die. Mother's very afraid. Oh, all right, we'll cook chicken soup. तो उस समय सब लोग जब सुने तो बिल्कुल वो अचंभित हो गए, क्योंकि सब लोग वो शुद्ध शाकाहारी थे। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, अगर आप नहीं दोगे इनको ये जो मैं कह रहा हूँ तो ये बालक मर जाएगा। उनकी माँ बोली, ठीक है, हम देते हैं। And then when they got the soup, they put a little drop in that, the child vomited. So he was not going to take it. और जैसे वो बना के लाए, क्योंकि डॉक्टर बोल रहे थे और बच्चे की उनके समय जन्म मृत्यु का प्रश्न था, तो जैसे उनको एक चम्मच पिलाया तो प्रभुपाद जी सब कुछ उल्टी कर दिया, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं ले पा रहे थे। So family understood, we're not going to give our child chicken soup. तब उनके परिवार के लोग समझ गए कि नहीं, इन बालक को हम चिकन का सूप नहीं दे सकते। And he got better and he didn't die, you know. तो वो ठीक हो गए और उनकी मृत्यु नहीं हुई। And you see also in Srimad Bhagavatam we hear about Narada Muni. In his previous life, before he became Narada Muni, he was the son of a maidservant woman. और उसी प्रकार हम श्रीमद् भागवतम में कथा का श्रवण करते हैं कि नारद मुनि अपने पिछले जीवन में किस प्रकार से, नारद मुनि बनने के पहले वो एक आया के पुत्र थे। Narada Muni he was born in the womb of a maidservant woman. He did not get any education. It was not a very noble family. It was just a working class family. He did not get proper education. Don't know even who's the father. Just the mother is there. But he had the opportunity to serve great devotees. तो नारद मुनि जो उनका जन्म हुआ था उसमें वो लगभग
शूद्र के परिवार में जन्म हुआ था, जहां पर उनकी माता वो कार्य करती थी आया के जैसे। उनको पता नहीं था कि उनके पिता कौन हैं, और केवल वो बस घर घर में जाके कार्य किया करती थी, उससे उनका गुजारा हुआ करता था। Before you can serve Bhagwan, before you can serve God, first you have to serve the devotee. और तब वो केवल नारद जी जो है वो जब वो भक्तों की कृपा से कैसे नारद मुनि बने, वो इंप्रेशन के पास में था। तो महाराज कह रहे हैं कि भगवान की सेवा करने से पहले हमको भगवान के शुद्ध भक्त को उनकी सेवा करनी चाहिए। So look, Narada Muni as a young boy was born in this family without any real education, without any material qualification. Somehow he got the mercy, he got association with very saintly devotees, and he served them. तो हालांकि नारद मुनि को कोई ऐसी भौतिक शिक्षा नहीं मिली, कोई उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि इस प्रकार से उनका जन्म हुआ था बहुत ही निर्धन परिवार में, और पिता भी नहीं थे। लेकिन ये इन प्रकार उनको भगवान के भक्तों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। Just like these young people did not give me flower garlands, they're giving me seva. जैसे महाराज कहने की जैसे यहाँ पर अभी बालक जो बैठे हैं सामने, उनको हो सकता है कि बहुत ज्ञान नहीं हो, लेकिन उन्होंने अभी ऐसे साधु को उनको माला पहनाने का अवसर प्राप्त हुआ। It's a very good beginning to their life. It's a very nice way to develop a good understanding how to associate with devotees. तो ये बहुत अच्छा ये एक तरीका है, ये समझ है कि जिस प्रकार से ऐसे बालक लोग को समझ में आए कि भगवान के भक्तों के साथ में हमें कैसे आदान प्रदान करना चाहिए। And we're sure that these young people will go on and they'll grow up to be very nice people, to be very good character and to be nice devotees. महाराज कह रहे हैं कि मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार से ये लोग की जो बढ़ोतरी होगी, ये एक बहुत अच्छे संस्कार के साथ में एक बहुत अच्छे भक्त बनेंगे और समाज में बहुत अच्छा प्रतिफल इनका प्राप्त होगा। So this is a real education. This is called spiritual education. तो ये वास्तविक शिक्षा है, इसको आध्यात्मिक शिक्षा कहा जाता है। Material education is all about kama, artha and kama, economic development, making money and enjoying material life. तो भौतिक शिक्षा वो केवल हमें काम और अर्थ, कि कैसे हम धन कमाएं और कैसे इंद्रियों का भोग करें। So the boys in the Gurukula, they came to Prahlad and they wanted to hear from him. Why you don't play with us? सारे बालक गुरुकुल में आगे प्रहलाद महाराज के पास में और पूछ रहे हैं कि आप क्यों नहीं खेल रहे मेरे साथ में? Just like Narada Muni, when he was the son of the maidservant woman, he was very nice young boy. He did not play a lot of games and he did not talk a lot of nonsense. जैसे भागवत में बताया गया कि नारद मुनि जब छोटे बालक थे तो लिखते हैं खुद अपने बारे में कि मुझे कोई खेल में रुचि नहीं थी और कोई प्रजल्प करने में और लोगों के साथ में, बच्चों के साथ में कुछ ऐसी बस टाइम पास करने में मुझे कोई रुचि नहीं थी। He was very well behaved and he pleased these saintly men. He was helping his mother to serve them. He would bring their meals and even he got their permission to eat the remnants of their food. तो बहुत ही उनका सुव्यवहार था, बहुत ही उनका जो व्यवहार था भक्तों के साथ में जो वहां पर थे उनके साथ में भक्ति वेदांतिस्ट, उनकी सेवा करना, उनको प्रसाद वितरित करना और प्रसाद जब बचता था उनका उच्चिष्ट उसको वो प्राप्त करते थे बालक के रूप में। With their permission, he got to eat some. One time he ate the remnants of their food, and just by eating the remnants of their food, he became freed of rajas and tamas. तो उनकी स्वीकृति से उन्होंने एक ही बार उनके उच्चिष्ट को प्राप्त किया और उच्चिष्ट को प्राप्त करते ही वो रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से बिल्कुल परे हो गए। So that association with these saintly people, even though young boy, it had a lasting effect on Narada Muni. And he went on, next life he became the son of Brahma and he became a great saintly devotee, the eternal spaceman, Narada Muni. तो बालक रूप में भी अगर बालक भी हो
तो उनको भी अगर ऐसे साधु का संग प्राप्त हो, भगवान के शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हो, तो उनके जीवन में बहुत लंबा उसका प्रभाव रहता है। जैसे नारद मुनि को हम देख रहे हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से वो अगले जीवन में फिर ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में नारद जी प्रकट हुए, जो पूरे ही और कहीं पर भी भ्रमण कर सकते हैं जहां पर चाहें। We travel, but not freely, right? it's all expensive to travel. तो महाराज कहते हैं कि हम लोग भी भ्रमण करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर के नहीं। हर जगह पर बहुत रेस्ट्रिक्शंस है, बहुत पूछताछ होती है। We have to spiritualize our bodies. Our bodies are too material. When we get a spiritual body, then you can travel freely. तो हम लोग का शरीर जो है वो बहुत भौतिक बद्ध शरीर है। जब हमको भी आध्यात्मिक शरीर जब प्राप्त होगा, हमें प्राप्त करना चाहिए, तब हम लोग भी कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। So Prahlad Maharaj is going to explain to his school friends how they can also develop a spiritual body. और प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को, जो वहां पर उनके साथ में जो संगी हैं, जो विद्यालय के, उनको शिक्षा देने जा रहे हैं कि किस प्रकार से वो लोग भी आध्यात्मिक शरीर विकसित कर सकते हैं। So Prahlad Maharaj begins his teaching to his friends. He said, Komar acharet pragno dharmam bhagavatamaya. That when one is a young boy, Kumar, this is the time to learn what is Bhagavad Dharma. तो अपनी शिक्षा शुरू करते हैं अपने मित्रों को। बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है भागवतम में ये। वो कहते हैं अपने मित्रों को, देखो ये कौमारम, इसी अवस्था से, कौमार अवस्था से ही हमको भगवान के बारे में, धर्म के बारे में जानना चाहिए। Right? The childhood is divided into three. There's the Kumar up to 5 years old, and then 5 to 10, that is Poganda, and then 10 to 15 is Kishore, right? And after that, then it's what do we call it? Yovana. यौवन। Yeah, Yovana, youth. तो ये बाल्यकाल को 3 भाग में विभाजित किया गया है। 1 से 5 वर्ष के बालक को, उनको जो है कौमार अवस्था कही जाती है। 5 से 10 की जो अवस्था है उसको पौगंड कहा जाता है, और 10 से 15 के बीच में कैशोर्य, उसके पश्चात नवयुवक या नवती हो जाते हैं। We know Lord Krishna, when he was growing up in the home of Nanda Maharaj, how he was, when he was a young boy, first the beginning of life, he's at home with Mother Yashoda, is in the home. But when he's a little older, then he's taking care of the calves, and he would go with the calves into the forest. And then as he got a bit older still, he'd be given the cows and go with the cows. जैसे हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण को, उनका बालकाल देखिए, शुरुआत के 1 से 5 वर्ष तक वो माता के साथ में रहते थे नंद भवन में। थोड़े से जब बड़े हुए, फिर तो उनको बछड़ों को लेकर के जाने के लिए, जो उनके परिवार का वो व्यापार था, कृषि और गोरक्षा, तो वो उनके बछड़ों को लेकर जाया करते थे। और जब थोड़े और बड़े हुए उम्र में, तब आयु में, तब उनको फिर गाय को, बड़ी गाय को लेकर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। Lord Krishna grew a bit quicker. You know, some boys, they grow quicker than others. So Krishna was only 3 years and 8 months. He was already finished with the Kumar, and he went to take care of the calves. And when he was 11, that was when he'd finished everything and he went to Mathura. तो भगवान श्री कृष्ण अपनी आयु से ज्यादा वो परिपक्व हो गए थे। जैसे कुछ लोग हो जाते हैं, 3 वर्ष 8 महीने की आयु में ही भगवान ने गाय को लेकर, बछड़ों को लेकर जाना शुरू कर दिया, और 11 वर्ष की आयु में उन्होंने सब अपना यहाँ का कार्य समाप्त करके वृंदावन से वो वहां पर जाकर के मथुरा में और राज्य करना शुरू कर दिया। And so anyway, Prahlad Maharaj, he's telling the boys in the Gurukula that from the beginning of life, you have to learn about the real purpose of life, Bhagavad Dharma, not Karma Kanda, not Varnashram Dharma, but Sanatana Dharma. तो प्रहलाद महाराज देखिए शिक्षा दे रहे हैं अपने मित्रों को। वो कह रहे हैं कि देखिए, हमको बाल्यकाल से ही हमको जो वास्तविक धर्म है वो हमें सीखना चाहिए। कर्मकांड भी नहीं, और जो कैतव धर्म है वो नहीं, हमको शुद्ध सनातन धर्म ये हमें सीखना चाहिए। Young boys, they're too young to decide if they're going to be Brahmin, Vaishya, or Kshatriya, or whatever. But
they can learn Bhagavad Dharma while they're still young. तो वर्णाश्रम धर्म ही नहीं, क्योंकि बाल्यकाल में ये निश्चित करना कि हम ब्राह्मण क्षत्रिय किस वर्ण में हैं, किस आश्रम में हैं, ये बहुत कठिन कार्य है। लेकिन भागवत धर्म हम सब सीख सकते हैं। So Prahlad said, Komar Acharit Pragno. Pragna means intelligence. They have to have a little good understanding to know what is the right activity and what is the wrong. तो वो कह रहे हैं कि देखिए, आप सब बुद्धिमान हैं, बुद्धि है उसका प्रयोग करिए। हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। So this education, this kind of education, to get spiritual knowledge, to understand the real purpose of life, this is the goal of life, Prahlad Maharaj is saying. तो ये शिक्षा जिसमें हम समझ पाए कि वास्तविक उद्देश्य क्या है मनुष्य जीवन का, ये जानना ही हमारे जीवन, मनुष्य जीवन की उपलब्धि है। और प्रहलाद महाराज यही शिक्षा अपने मित्रों को दे रहे हैं। In material life, ordinary people, they think if we solve the economic problems of life, then we will be happy. भौतिक जगत में लोग समझते हैं कि अगर हमारी आर्थिक समस्या का समाधान मिल जाए तो हमारा जीवन अच्छे से बीतेगा। People are thinking, we'll get the job, we'll make more money, we'll be happy. कि हमें कुछ कार्य मिल जाए, हमें धन मिलेगा और हम लोग बहुत खुश हो जाएंगे। Is everybody happy? तो क्या जिनको धन मिल रहा है वो प्रसन्न है? No. The nature of the material body is there will not be always happiness. There will be happiness and there will also be distress. क्योंकि भौतिक जगत का स्वभाव है ये, यहाँ पर सुख और दुख ये दोनों चलते रहेंगे, कोई केवल सुखी ही नहीं रहेगा। So Prahlad Maharaj explains to his friends that why you worry about just trying to be happy in the life? Happiness comes on its own, just like distress comes. तो बहुत सुंदर बता रहे हैं प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवत में अपने मित्रों को कि देखो आप लोग क्यों केवल सुख के बारे में सोच रहे हो। जैसे दुख आपको बिना कोई यत्न किए अपने आप आ जाता है, वैसे ही सुख भी अपने आप आएगा जो आपके कोटे में है। उसके लिए बहुत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। Nobody wants distress, but it comes anyway. क्योंकि कोई देखिए आप कोई भी दुख नहीं चाहता है ना, लेकिन बिना यत्न किए दुख आ जाता है। If distress comes without us asking, the happiness will also come without asking. तो जब बिना पूछे हुए, बिना मांगे हुए दुख आ रहा है, उसी प्रकार बिना मांगे, बिना पूछे सुख भी आएगा। उसके लिए प्रयास मत करो। So the goal of life is not to just try to be comfortable here in this world. तो इसीलिए हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल इसी जगत में आराम से रहना ये नहीं होना चाहिए। From the Bhagavad Gita, Lord Krishna is teaching us that from the highest planet of Brahma down to the lowest, they're all places where there is misery. भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ब्रह्म लोक से लेकर के और इस भुवन तक सभी लोकों में केवल ये पुनरावृत्ति और केवल जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। Abrahma bhuvana loka punar avartano arjuna. They're all places of birth and death. It's there everywhere. You go to Satyalok or Patalalok, it's all birth. Everywhere there's birth and death. तो ब्रह्म लोक से लेकर के पाताल लोक तक सभी स्थान पर गीता में भगवान बता रहे हैं कि ये जन्म और मृत्यु ये हर स्थान पर है। We are trying to make a nice, happy situation for ourselves here in this world. और हम सब मूर्खता पूर्वक ये विचार कर रहे हैं कि कैसे इस जीवन में हम लोग अपना बहुत आरामदायक स्थिति बनाएं हम लोग। But how long can we stay here? Our time is limited. लेकिन कब तक हम लोग यहाँ पर रह सकते हैं? हम सबका समय बहुत सीमित है। We may say, I'm not ready to go yet. हम कह सकते हैं कि अभी हम तैयार नहीं है जाने के लिए। We are not Parameshwara. We are controlled by the force of nature. तो हम लोग परम ईश्वर नहीं हैं, हम लोग इस प्रकृति के द्वारा नियंत्रित हैं। We take our birth under his direction
And we leave this world under his direction. हम लोग प्रकृति के निर्देश में ही हम लोग इस जीवन में आए हैं, इस जगत में आए हैं, और उसी के निर्देश, उसी के नियम से यहाँ से जाएंगे भी। So Prahlad Maharaj explains to his friends that we should not waste our time just trying to be happy and to be comfortable here. प्रहलाद महाराज समझा रहे हैं अपने मित्रों को, देखो हमको अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए केवल इसीलिए कि कैसे इंद्रिय का भोग करें और यहाँ पर आराम से रहें। The real problem of life is birth and death. क्योंकि वास्तविक समस्या जो जीवन की है वो है जन्म और मृत्यु। We're in this material body, and this material body is temporary. It's subject to these miseries. It takes birth, it grows, it gets old, it gets diseased. One day it will die. हम लोग भौतिक क्षणिक शरीर में हैं जिसमें हम सबको जन्म, मृत्यु, जरा, वृद्धावस्था और एक दिन मृत्यु, यही हमें प्राप्त करना होगा। Prahlad's only a little boy, young boy. He's speaking about these things to the other boys. अब सोचिए प्रहलाद महाराज छोटे से बालक हैं, कौमार अवस्था है, 5 वर्ष के आसपास, और सभी बालकों को ये शिक्षा दे रहे हैं। So the boys say, well, we may also die. We're also, although we're young children, we can also die sometimes. तो सब बच्चे को सोचने लगे, विचार करने लगे, अरे हम तो अभी छोटे बालक हैं, तो हम भी मरने वाले हैं, ऐसा विचार आना शुरू हो गया उनके मन में। So the boys say, why we should do bhakti? What benefit will help if we're going to die? और तब वो प्रश्न पूछने लगे कि जब मरना ही है, अभी आपने बताया, तो फिर भक्ति करके क्या लाभ होगा हमको, बताइए। Oh, you can go on in your next life. You can continue. You don't lose whatever bhakti you do in this life. The benefit will be there in the next life. प्रहलाद महाराज ने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, इसमें कोई ह्रास नहीं होता है, कोई नाश नहीं होता है। जितनी भक्ति आप कर पाएंगे इस जीवन में, अगर आप पूर्ण नहीं कर पाए तो अगले जीवन में आपको फिर से उसके आगे करने का अवसर प्राप्त होगा। Just like in this life, everyone is, we're enjoying some things and we're suffering other things. जैसे इस जीवन में हम लोग कुछ न कुछ, सबके जीवन में कुछ न कुछ हम लोग प्राप्त के अनुसार सुख भोग रहे हैं, तथा कथित सुख और दुख भोग रहे हैं। We're enjoying because we did some good things, and we're suffering because we did some bad things. तो कुछ पुण्य के प्रताप से हमको कुछ सुख मिल रहा होगा, और कुछ पाप जो हमने किए होंगे उसकी वजह से हमको दुख मिल रहा होगा। We all get the results of our past work. जो भी हमें प्रारब्ध में, जो हमारे प्रारब्ध हैं, अच्छे बुरे कर्म, उनका परिणाम निश्चित रूप से हमें मिलना है। Happiness and distress, sukh and dukh, it's there for all different living entities, not only human, all 84 lakh species of life, they're all enjoying some things and suffering other things. तो ये 84 लाख योनियों में सभी जीवों में ये सुख और दुख, सबके अंदर कुछ सुख और कुछ कष्ट, ये सबको प्राप्त है। Even the dogs and the cats and the mice and the birds and the fish, they have some enjoyment, they have some suffering. तो सबको, कुत्ते, बिल्ली, चूहे, मछली, पक्षी, सबको ये कुछ न कुछ सुख और दुख उनको भी अपने स्तर पर प्राप्त हो रहा है। We are trying to avoid the suffering. We only want the enjoyment. लेकिन हम लोग की कैसी चेतना होती है कि हम दुख नहीं चाहते, हम केवल आनंद का भोग करना चाहते हैं। But we cannot avoid the old age, the disease, the death. It comes for every living entity. लेकिन हम इसको मना नहीं कर सकते, इससे हम बच नहीं सकते। सबके जीवन में वृद्धावस्था, मृत्यु, ये आना ही आना है। We go to higher planets, live a longer life, but there is also old age and death. तो अगर हम उच्च लोक में भी जाएं तो ठीक है, वहां पर थोड़ी आयु हमारी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन फिर उसके पश्चात फिर हमको फिर से वृद्धावस्था और मरण निश्चित है। Lord Brahma has a long life, very long life. ब्रह्मा जी हैं, उनकी बहुत लंबा उनका जीवन आयु है। But he is also worried about his old age and his death. लेकिन उनको भी चिंता रहती है कि अब समय आ रहा है, मुझे जाना होगा। He has to leave his position. He has to think where he's going to go.
उनको भी सोचना पड़ता है कि अब इसके पश्चात मैं कहाँ जाऊंगा, समय पूर्ण होने के पश्चात उपाधि छोड़नी होगी। We have to be sure, where do we want to go from here? तो हमको ये बहुत निश्चित करना होगा, समझना होगा कि हम इसके पश्चात कहाँ जाएंगे, ये जीवात्मा कहाँ यात्रा करेगा। We have to understand there's nowhere, anywhere in this material world where there is freedom from misery. तो हम सबको समझना होगा कि इस पूरे भौतिक जगत में हम जहां पर भी जाना चाहें, कोई भी स्थान इस दुख से परे नहीं है। But there are two worlds. This is the material world. There's another world. There's the spiritual world, the supreme abode, the Param Dham. तो दो जगत हैं, एक ये अपरा जगत और परा जगत, जो परम धाम है भगवान का। Krishna talks about it in the Bhagavad Gita. He said, there's another world which is eternal, which is beyond this material manifestation. भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि अर्जुन, इस जगत के परे एक और जगत है जो शाश्वत है और जहां पर इन जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि कष्टों से बिल्कुल परे है। Our real business in human life is to get out from this world. और हम सबका इस मनुष्य जीवन में ये उद्देश्य होना चाहिए कि इस जगत से जो कष्ट से परिपूर्ण है, इससे परे हुआ जाए। And the first step to get out from this world, we have to first of all understand who we are. Self-realization. We have to understand our own self. और इस जगत से परे होने के पहले सबसे पहला जो उसमें कदम है वो ये है कि समझना कि हम कौन हैं, आत्म साक्षात्कार। If we're still identifying with the material world, the material body, we will come back again in another body, in another place, in this world. अगर अपने आप को हम इसी जगत का एक भाग मानेंगे और अपने आप को देहात्म बुद्धि पर अपनी चेतना रखेंगे, तो हमको पुनः किसी देह में आना होगा और इसी भौतिक जगत में कहीं ना कहीं आना होगा। Prahlad Maharaj explains to his friends how, although they may live 100 years, they actually spend about 50 years sleeping. So half the life is spent in sleep, because every day you have to sleep. You take some rest. You may think, oh, long life, 100 years, but you've spent 50 years sleeping. प्रहलाद महाराज बहुत व्यवहारिक शिक्षा दे रहे हैं कि देखिए, हम लोग अपने जीवन में अगर हम लोग 8-10 घंटे, कभी कभी 10 लोग ज्यादा भी सो जाते हैं, तो लगभग कह रहे हैं कि 50%, आप देखिए बाल्यकाल में हम बहुत सोते हैं, कि लगभग 50% हमारा समय, अगर हम कहते हैं कि हम 100 वर्ष जिएंगे, तो 50 वर्ष खाली सोने में चला गया। And you spend the first 5 years of your life growing up, and then you start to go to school. You have to learn to read and write. And you have to spend first 10 years, 15 years, 20 years, go to college and study. तो बाल्यकाल में 5 वर्ष तक खाली हम लोग खेलते कूदते रहते हैं, फिर थोड़े बड़े हुए तो हमें सीखना पड़ता है, विद्यालय जाना पड़ता है, कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, फिर विश्वविद्यालय में जाना होगा और सीखना होगा कैसे पढ़ाई की जाए, कैसे अपना करियर बनाया जाए। इस प्रकार से हमारा 20 वर्ष 25 वर्ष ऐसे निकल जाता है। And you spend, of course, so many years playing games, football, cricket, so many ball games. और कई वर्ष हमारा खाली खेलने में, क्रिकेट, फुटबॉल, ऐसे कई ऐसे जो आजकल बेसबॉल, कई ऐसे बॉल से जो गेम है उस पे हम लोग अपना समय व्यर्थ करते हैं। So 20 years of the life is spent like that, growing up. तो 20 वर्ष तो खाली हमको बड़े होने में लग जाता है, 20 वर्ष। And then end of life, 20 years is spent in invalidity. You're in the wheelchair, you may have the stroke, the body is all stiff, you can't move, you can't speak. और अंत के 20 वर्ष वो भी हमारे बिल्कुल क्रियाहीन हो जाते हैं, जिसमें हम लोग को किसी को बिठाना होगा, कोई हमको उठाएगा, व्हीलचेयर पे तो बैठना पड़ेगा, शरीर अपने आप रुक नहीं पाता है। वो वृद्धावस्था लगभग 20 वर्ष हमारे वो भी क्रियाहीन रहते हैं। Sometimes, you know, that the rich people, their children, when their father gets old and sick, they don't want to take care of them. They'll put them in the home or they'll put them in the hospital. तो कई बार देखने को मिलता है कि जिनके माता पिता बड़े वृद्ध हो जाते हैं,
और उनके पास भी समय नहीं है, संस्कार भी इस प्रकार के नहीं है, तो वो लोग उनको ओल्ड एज होम में, ऐसे स्थान पर जहां पर कोई देखभाल करे वहां पर रख के आ जाते हैं। And they get the maid or the nurse to take care of them. और या तो फिर अपने घर पे अगर रखेंगे तो कोई नर्स या कोई ऐसे मेड जो उनका देखभाल कर सके वो उनको रख देते हैं। And the poor old person, they're laying in the bed helpless, and the maid is there all day watch television. तो उनको बिस्तर पे लिटा देते हैं और जो मेड या नर्स रहते हैं वो पूरा दिन भर बैठ के टेलीविजन देखते रहते हैं। And the poor old person's laying in the bed. He can't say anything. He wants food. He wants some. The maid is just watching the television all day. तो वो वृद्ध व्यक्ति जो है बेचारे वो पड़े रहते हैं, कुछ बोल नहीं पाते, शरीर उनका कांप रहा है, और जो उनको देखने बहाल करने वाले जो नर्स या आया जो है वो आराम से बैठ के टेलीविजन देखते रहते हैं। So like that, 20 years of the life is spent in old age. 20 years of the life is spent in the childhood, just growing up, and half the life is spent sleeping. तो सोचिए, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं प्रहलाद महाराज इस श्लोक के भागवतम का, कि 20 वर्ष आपके शुरुआत में चले गए बाल्यकाल में, बड़े होने तक 20 वर्ष आखिरी के आपके बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं, और बीच में जो आपकी आधी लाइफ है वो आप सोने में बिता दिया आपने। समय कितना बचा? So you have not got much time left. You know, there's not a lot of time left in the life. We have to make use of the time for important things. बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है ये, इसको जरा विचार करके देखिए आप सब लोग, बहुत व्यवहारिक ज्ञान है ये, कि फिर कितना समय बचा हमारे पास में। So Prahlad Maharaj is telling these young boys that this is why I don't want to play games with you. I don't want to waste my time. It's no benefit to run around after a ball, kick a ball. तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि इसीलिए मैं, देखिए इतनी महत्वपूर्ण बात बताई महाराज ने, कि इसलिए बोल रहे हैं कि इसलिए मैं आप लोग के साथ में नहीं खेल रहा हूँ, कि अपना समय खाली मैं बस ये बैट बॉल और फुटबॉल के पीछे बिताऊं, क्योंकि समय नहीं है मेरे पास में। Prabhupada even said, he said, when they wanted me to play football, he said, I would be the goalkeeper. He said, I didn't like to run around. I would just stand in the goal. श्री प्रभुपाद कहते थे वो कलकत्ता में कि जब वो बाल्यकाल में उनके मित्र लोगों को बुलाया करते थे कि चलो हम लोग फुटबॉल खेलेंगे, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं गोलकीपर बना करता था, क्योंकि मुझे उनके साथ दौड़ने में कोई रुचि नहीं थी, मैं गोलकीपर बन जाता था। So Prahlad Maharaj is warning his friends, we have to make use of this life for some good purpose, to understand our real position, our real self. इसलिए प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को बहुत गंभीर शिक्षा दे रहे हैं कि देखो, हम लोग अपने जीवन को इस प्रकार से व्यर्थ नहीं गवा सकते, समय बहुत कम है हमारे पास में, और इसको हमको जो मुख्य उद्देश्य है उसकी परिपूर्ति के लिए हमें इसको उपयोग करना चाहिए। So in the Vedic culture, when the children are young boys, young men like this, they should go to the Gurukul and they should be trained in brahmacharya. तो वैदिक सभ्यता के अनुसार, वैदिक संस्कृति क्या है कि बाल्यकाल से बच्चों को गुरुकुल जाना चाहिए, जहां पर उनको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, विशेष रूप से ब्रह्मचर्य की शिक्षा। Brahmacharya training is training to control the mind and senses so you can be peaceful in life. तो ब्रह्मचर्य की शिक्षा जिसमें हम सीखते हैं किस प्रकार से अपने मन को, अपनी इंद्रियों को हम आत्म संयमित करें जीवन के उद्देश्य की परिपूर्ति के लिए। Brahmacharya doesn't mean you don't marry. You can grow up and get married. You can always do that. But you have to get the training in the beginning. तो ब्रह्मचारी का अर्थ नहीं है कि आप फिर बाद में गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे, आप कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत की जो आयु के लगभग 25 वर्ष हैं उसमें हम ये शिक्षा प्राप्त करते हैं कि कैसे अपने इंद्रियों को आत्मसंयम किया जाए। The young men, young boys, they go to the Gurukula and they stay in the ashram of the Guru and they learn spiritual discipline. तो आध्यात्मिक जो शासन है वो सीखते हैं, अनुशासन सीखते हैं वो गुरु के साथ में गुरुकुल में जा करके ऐसे जो बालक हैं। They learn to serve the Guru, to carry out every day they will go out and they will collect alms, and whatever they collect they'll bring and give to Guru. और वो सीखते हैं कैसे गुरु की सेवा की जाए। वो प्रतिदिन बाहर जाएंगे, लोगों से भिक्षा मांगेंगे, लेके आएंगे, गुरु को देंगे। ये गुरुकुल का ये वातावरण था। Lord Krishna went to Gurukula when he was a young boy. Him,
Lord Krishna and his brother Balaram, they both went to Gurukula. They went to Avantipur, the ashram of Sandipani Muni. तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम ये दोनों लोग भी देखिए अपने आश्रम से शिक्षा दे रहे हैं स्वयं भगवान, लेकिन फिर भी गुरुकुल में गए वो अवंतीपुर, जहाँ पर संदीपनी मुनि के आश्रम में। You know Avantipur? Today it's called Ujjain, right? Yes. Okay. So Sandipani Muni's ashram is there. Lord Krishna came to Mathura. He killed Devaki, his mother and father, from the prison. So Vasudeva and Devaki, they wanted their children to get education, and they sent them to Avantipur. तो आज के परिप्रेक्ष्य में उसको हम लोग उज्जैन कहते हैं, जहाँ पर पिछले बार हम लोग यात्रा में यहाँ से गए थे उज्जैन। तो भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा में आए, उन्होंने कंस और चाणूर इत्यादि असुरों का वध किया और वसुदेव देवकी को जेल से रिहा करवाया, वहां पर मुक्ति दिलवाई। उसके पश्चात वसुदेव ने क्या किया कि सोचे कि वो गांव में वृंदावन में थे, तो अब इनको हम शिक्षा के लिए गुरुकुल में भेजेंगे, और तब उनको वहां से उन्होंने संदीपनी मुनि के आश्रम में उज्जैन में भेजा। Lord Krishna and Lord Balaram, they went there, they stayed there 64 days. और वहां पर आप जाएंगे तो आपको ज्ञात होगा कि वहां पर 64 दिन तक उन्होंने वहां पर रहे, 64 कला सीखने के लिए। And they learned all the 64 arts in 64 days. तो 64 दिन में 64 कलाएं सीखी हैं। उज्जैन में सबका वर्णन किया गया है, हर कला का वर्णन किया गया है। Everything they learned perfectly. और सब कुछ बिल्कुल पूर्ण रूप से सीखा उन्होंने। And they learned everything, and then they had to satisfy their guru. Sandipani Muni said, he said, now I have taught you. He said, now you have to do something for me. और सीखने के पश्चात अपने गुरु को ने बोला कि गुरु ने कहा कि देखो आपने सब सीख लिया शिक्षा, अब आपको गुरु दक्षिणा, आपको कुछ करना है मेरे लिए। So Sandipani Muni told Krishna and Balaram, they said, you know, I had a son. My son died. I want you to bring him back for me. तो उन्होंने कहा कि देखो मेरे एक पुत्र थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, मैं चाहता हूँ कि आप लोग उनको लेकर के आइए। Sandipani Muni could understand that his students were very qualified. He knew that they were not ordinary students, so he asked them for something very special. He said, my son died one day when he went to the sea. There was some demon there, killed. I want you to bring him back. तो संदीपनी में जानते थे कि ये लोग साधारण बालक नहीं हैं, ये बिल्कुल अमानवीय प्रतिभाओं से युक्त हैं, इसलिए उनको बहुत विशेष कार्य दिया उन्होंने कि मेरा बालक एक बार गया था समुद्र में स्नान करने के लिए और तब से वापस नहीं आया, मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको वापस लेके आइए। So Lord Krishna immediately said, all right, no problem, we will do it. And they went to the sea, they found the demon, but the boy was not there. So then they went to Yamalok, and then Yamalok, they found that Yamaraj came there, and Yamaraj bowed to Krishna and Balaram and asked, how can I serve you? And they said, I want my guru's son, you give him back. And they brought the boy, they gave him to Krishna, brought the boy back to Sandipani Muni. तो भगवान श्री कृष्ण बलराम कृष्ण ने बोला ठीक है, बिल्कुल हम लेके आएंगे, सेवा करेंगे। समुद्र के पास में गए, वहां पर जो शंख रूपी जो वहां पर एक असुर थे, उनसे ज्ञात हुआ कि उन्होंने वहां पर नहीं लिया है। वहां से वो यमलोक गए, फिर यमलोक में यमराज जी आए, वो समझ गए अपने स्वामी को और उनको प्रणाम किया, प्रणिपात हो गए, और उसके पश्चात उन्होंने जो वहां पर वो बालक थे उनको लाके उनको दिया, वो बालक को लेके आकर के और संदीपनी मुनि को अर्पित किया। So that is the brahmachari. He will carry out the order of the guru, just like Prabhupada. He told us, distribute my books, preach the chanting of Hare Krishna, worship Krishna. ये है ब्रह्मचारी आश्रम, जिसमें कि अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने का ही एकमात्र उनका उद्देश्य होता है। महाराज बोल रहे हैं कि जैसे प्रभुपाद जी ने हम सबको, अर्थात जैसे महाराज बता रहे हैं अपने बारे में भी, देखिए आप सोचिए लगभग पिछले 50 वर्षों से ज्यादा समय से भी अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहा कि आप लोग मेरी पुस्तक का वितरण करिए, सभी जितने भी जीवात्मा सबको ये प्रचार करिए और भगवान के विग्रह की सेवा करिए, और तब से ये लोग यही करते आ रहे हैं। Just like Lord Chaitanya, he called Haridas and Lord Nityananda, and Chaitanya Bhagavat describes,
Suno suno Nityananda, Suno Haridas, Priti Gari Gari Giya Koroe Bhiksha, Bolo Krishna, Bojo Krishna, Koro Krishna Shiksha. Very famous instruction. Lord Chaitanya is telling Haridas, Nityananda, I want you to go every gully, every gate, every lane, every door, knock on the door, fall at the feet of the people and beg them, chant the name of Krishna, worship Krishna, read the books about Krishna. जैसे चेतन भाव में बताया गया कि चेतन महाप्रभु ने हरदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को बुला करके बोला कि आप हर एक घर में जाइए और जा करके दांत में तीर्ण करके उनसे भिक्षा मांगिए। क्या भिक्षा? की कृपा करके आप कृष्ण का नाम लीजिए, कृष्ण का भजन करिए, कृष्ण की शिक्षा जो उन्हें शिक्षा दी है उसी को ग्रहण करिए। So the training in the beginning of life is very important to get that discipline, brahmacharya training. Then that makes the man very powerful and strong. He can control his mind and keep good intelligence. तो ये जो आरंभिक शिक्षा होती है गुरुकुल में बहुत आवश्यक है। ये महाराज बता रहे हैं कि उससे एक बहुत परिपक्व व्यक्तित्व वो सामने आता है समाज में, बहुत ही शक्तिशाली, क्योंकि वो अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर संयम करना सीख जाते हैं। वो फिर हर जगह पर विजय प्राप्त करते हैं। People want young women are looking for a qualified man. I want a good husband. I want a nice, he should be rich. That's not the qualification. महाराज कह रहे हैं कि नवयुवतियां जो चाहती हैं कि हमें विवाह करना है तो ऐसा पति मिले जो उनके पास बहुत धन हो, अच्छी योग्यता हो, लेकिन महाराज कह रहे हैं कि वो योग्यता नहीं है। Best qualification should be brahmacharya. He should be trained as a brahmachari, can control his mind and senses. महाराज कह रहे हैं कि सबसे उत्तम योग्यता ये है कि उनको अपने आत्म संयम होना चाहिए, उनको अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर संयम करना आना चाहिए। वो व्यक्ति योग्य है विवाह करने। If someone has control over their mind and senses, then they have good qualities. They'll be peaceful. They can make good decisions. They'll be intelligent. They'll be clean. They'll have all the good qualities. क्योंकि जब ये शिक्षा होगी तभी उनके अंदर सारे अच्छे गुण, दैवी गुण होंगे, बिल्कुल साफ, अपने क्या निर्णय लेना है उचित अनुचित उसका ज्ञान, और बहुत शक्तिशाली उनका व्यक्तित्व होगा सबको सही दिशा में लेके जाने के लिए। One who is devotee of Krishna will have all the good qualities. It comes about by association. और जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं उनके अंदर ये दैवी गुण स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। और कैसे आते हैं ये? ऐसे भक्तों की संगति करके। We gave the example. Narada Muni in his previous life, he got association for some time with these sadhus. He became a great devotee. जैसे हमने शुरुआत में बताया आरंभ में कि नारद मुनि कुछ ही समय के लिए, उनको बस चतुर्मास के लिए भक्ति वेदांतियों का संग प्राप्त हुआ और वो महान भक्त नारद बन गए। So we encourage all of you also associate with the Krishna conscious devotees and become nice devotees. Make your life successful. इसलिए महाराज सबको ये, हम सबको निर्देश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि हम सब भी कृष्ण भावना भावित जो भक्त हैं उनके साथ में संग करें और उनके संग में ये भक्ति की विधि को सीख करके हम भी एक अच्छे भक्त बने। Is there any question? किसी कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है आज के विषय पर? Maharaj, the way it's coming, the nectar, we wanted to hear more and more actually. So we'll continue definitely tomorrow. कोई किसी कोई जिज्ञासा प्रश्न है आज के विषय पर? Yes, Prabhu. Thank you very, very much for this. The devotee children that we have around, after hearing, and then they get trapped in the school among their peers and teachers and surroundings. They feel that they should go to Gurukula. They feel that Gurukul is a place where they will get a very sublime life and be very easy, smooth dealings with other counterparts. You can kindly throw some light on that. That would be
we help for the students who are really going through a challenging situation in this school now. Yes. Well, Srila Prabhupada also didn't go to Gurukula, but somehow he survived. He kept his qualities. In his whole life, he never ever even drank tea. तो प्रभु जी का प्रश्न था कि किस प्रकार से आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं जिस प्रकार से वातावरण इतना दूषित है, इसमें कैसे ये जो बालक हैं जो अभी गुरुकुल में नहीं हैं, हालांकि उनके मन में है ऐसी इच्छा और समझते भी हैं कि इस प्रकार के वातावरण में बहुत कठिन है रहना जहाँ पर सब दूषित वातावरण है, तो कैसे इससे इस परिप्रेक्ष्य पर रहते हुए ये चुनौती से कैसे निकला जाए। महाराज ने कहा कि देखिए, आवश्यक नहीं है कि सब लोग गुरुकुल ही जाएं, जैसे प्रभुपाद जी नहीं गए गुरुकुल, श्री प्रभुपाद कोलकाता में थे वो, लेकिन जो छवि बाल्यकाल से उनके माता पिता ने उनको दी इस प्रकार से कि पूरे जीवन उन्हें कभी भी चाय भी नहीं पिया प्रभुपाद जी ने। So the parents have a lot to do. It's a big responsibility to be mother and father, to bring children into the world. We have to show the right example. तो इसलिए माता पिता का जो दायित्व है वो बहुत ऊपर है, बहुत उच्च है। वो इस प्रकार के बाल संतान को इस संसार में लेकर के आना, संस्कार का पालन करना और ऐसी शिक्षा देना, ये माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। So sanskars are very important. They help for the development of the child. तो इसलिए संस्कार होना बहुत आवश्यक है, जिससे कि बाल्यकाल से ही बच्चों की उस प्रकार से उनके मानस पटल पर ऐसी छवि पड़ जाए कि वो पूरे जीवन पर्यंत उसका पालन कर पाए। So people have to be educated in these things. Unfortunately, because of Kali Yuga, people are ignorant. They don't know. तो माता पिता को शिक्षित होना चाहिए इसमें, लेकिन कलयुग के प्रभाव से, दुर्भाग्य से कलयुग के इस प्रभाव में लोग अज्ञानी हैं, शिक्षित नहीं हैं। They don't know the art of producing God-conscious children. महाराज कह रहे कि आजकल के गृहस्थों को पता नहीं है कैसे भगवत भक्ति, भगवत चेतना से युक्त संतान कैसे उत्पन्न करें, उनको ये ज्ञान नहीं। So the Krishna consciousness is to educate people in these things, how to make people strong in their vows and keep their discipline. तो कृष्ण भावना भावित अभियान जो है ये इसीलिए है, ये शिक्षा देने के लिए कैसे अपने संकल्प के साथ में हम लोग इस जीवन में जिए और बहुत शक्तिशाली व्यक्तित्व के साथ जिए। Even a late start, it's better late than never. तो विलंब से भी अगर शुरुआत हो तो भी वो उचित है कि हम कभी नहीं करें कुछ, उससे भी अच्छा कि विलंब से करें नहीं करें। It's difficult, of course, older people to become God conscious. They can't be trained so easily, but still some start can be made. तो हालांकि कठिन है ये कि इस प्रकार की शिक्षा देना जो वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर हम प्रयास करेंगे तो ये संभव है। It doesn't need to take a long time. We see examples like in Srimad Bhagavatam, there was one king called Kadvanga. He only had a moment, but he became God conscious in a moment and went back to Godhead. तो ये बहुत लंबा समय नहीं लगता है। श्रीमद् भागवतम में कथा आती है खटवांग महाराज की, उनको बहुत लंबा समय नहीं, एक मुहूर्त, एक क्षण उनके पास में था, उसी में भक्त बन गया वो। Maharaj Parikshit gave up everything and in 7 days he was able to go back to Godhead. महाराज परीक्षित 7 दिन में कथा का श्रवण करके और भगवत धाम गए। So there are many examples. Devotees, very quickly, if you're serious, you can become God conscious. तो ऐसे कई उदाहरण हैं श्रीमद् भागवतम में कि अगर आप गंभीर हैं तो तत्क्षण कुछ ही समय में, दीर्घकाल नहीं लगता है और आप भगवत भक्त बन जाते हैं। So Prabhupada, as I said, Prabhupada, he was born in a Vaishnava family. He didn't go to the Gurukula, but he learned the arts from his father. ये बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं महाराज। श्रील प्रभुपाद देखिए, वो वैष्णव परिवार में जन्म हुआ, गुरुकुल नहीं गए वो, लेकिन उन्होंने अपने पिता से ये शिक्षा, ये कला सीखी उन्होंने।
He learned deity worship. He learned to worship Lord Jagannath. He learned to be strict vegetarian. He was not interested in all the nonsense which goes on, the drinking and the meat eating and the gambling. He never took interest in these things. तो बाल्यकाल से उन्होंने सब कुछ सीखा, उन्होंने किस प्रकार से जगन्नाथ जी के सेवा करना, रथ यात्रा निकालना, उत्सव मित्रों के साथ में, और कभी भी उनको ये जो दुर्व्यवहार हैं, जो अवांछित चीजें हैं, जैसे कि मदिरा सेवन, मांस खाना, जुआ खेलना, अवैध संग, इस सब में कोई उनको रुचि नहीं थी। So if the young people are given a good chance, a good education from their home, then even when they go away from the home, they'll keep that culture with them. बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा महाराज दे रहे हैं हम सबको कि सभी गृहस्थों को चाहिए कि कम से कम अपने घर में इस प्रकार का वातावरण बनाएं और ऐसी शिक्षा दें अपने संतान को कि हालांकि वो जाएंगे बाहर, विद्यालय में जाएंगे जहाँ पर सब लोग भक्त नहीं हैं, लेकिन घर से ही उनको ऐसी शिक्षा मिलेगी, ऐसे संस्कार मिलेंगे जो कभी भी उनको ऐसे कार्य को करने के लिए जो अवांछित हैं उत्साहित नहीं करेंगे। So we have to understand material life. Yes, you need money, you need to earn, you have to have some economic development, but you need also some spiritual life. तो ठीक है, भौतिक जीवन में हम समझते हैं कि ठीक है, बालक है, कैसे रहेंगे समाज में, कुछ धन चाहिए इनको, शिक्षा चाहिए, इस प्रकार की शिक्षा, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि सबसे आवश्यक है वो क्या है, आध्यात्मिक शिक्षा। Just working hard and earning money is not going to solve the problems of life. केवल कठिनता से कार्य करना और धन कमाना ये हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं देगा। But if you cultivate Krishna consciousness, that can solve the problems of life. लेकिन अगर आप कृष्ण भावना भावित ये अभियान, कृष्ण भावना भावित शिक्षा जो है ये अपना लेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का समस्या का समाधान मिल जाएगा। And you can become Krishna conscious in any situation. You don't need to change anything. और किसी भी स्थिति में हम कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। हमको अपने स्थान परिवर्तन, स्थिति परिवर्तन की आवश्यकता नहीं। You stay in your position and just hear about Krishna. तो जहां पर भी हैं, जिस स्थान पर हैं, वहां पर रहें और श्रवण करते रहें भगवान के बारे में। We don't say, oh, you have to give up the world. हम ऐसा नहीं कहते कि आपको सब कुछ छोड़ना है, जगत छोड़ना है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। Mahaprabhu told the Brahmana from Kurmadesh, you become a spirit, you become a teacher, tell people about Krishna. Wherever you go, whoever you meet, tell them about Krishna. तो जब चैतन्य महाप्रभु गए थे अपनी यात्रा में, तो कुर्म ब्राह्मण जब उनको मिले, वो बोले मैं आपके साथ में आऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, आप यहीं पर रहो और जिसको भी मिलो, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, उनको कृष्ण का उपदेश दीजिए, आप बस यहीं पे रहिए। आप Amara gaya Guru Hanatare Desh. Mahaprabhu said, by my order, you become the teacher, save the world. महाप्रभु ने कहा कि आप मेरी आज्ञा से गुरु बन करके और जहां पर हो वहीं पर पूरे जगत की रक्षा करो, सबको कृष्ण का उपदेश दो। So you have this culture, you have this knowledge, you have to take it, you have to use it, take advantage. तो ये संस्कृति, ये ज्ञान हमको लेना, ये बहुत सौभाग्य है जो हमको दिया जा रहा है प्रभुपाद जी की संस्था में। इसको ले करके और हम सबको परिपक्व बन करके सबको बचाना है। The blind follow the blind. If you follow the materialistic blind people, you'll get the same fate as all these blind people. Blind man follows another blind man, you end up in the ditch. ये प्रहलाद महाराज की शिक्षा है श्रीमद् भागवतम में कि अंधा अगर अंधे का पालन करेगा तो वो गड्ढे में ही जाएगा। तो अंधे लोग, यही चल रहा है, जो भौतिकवादी लोग हैं वो आत्म तत्व के लिए अंधे हो चुके हैं और उनके पीछे जो भी चलेंगे उनके पालन करते हुए वो सब भी अंधे के साथ में और गड्ढे में गिरेंगे। So Lord Krishna has given us a lot of instruction. Prahlad Maharaj is giving us the same teaching, the same message to the Gurukula boys. तो भगवान श्री कृष्ण ने हमें से बहुत शिक्षाएं दी हैं और वही शिक्षा को प्रहलाद महाराज यहाँ पर अपने गुरुकुल के जो उनके सहपाठी हैं उनको भी यही दे रहे हैं। Okay, any other question? और कोई प्रश्न? Okay, Hare Stop here Krishna. today. Thank you so much, Maharaj. So wonderfully we heard this
the introductory part of this seminar. We have read this pastime, we have heard this pastime several times, but the way Maharaj narrated this, it was so attractive. And so many points came to learn, to imbibe in our life actually. So Maharaj, very, very grateful to you. So बहुत ही आभारी हैं महाराज के, इतने सुंदर रूप से एक शब्द जो महाराज के मुख से निकले हैं आज की कथा में, अमृत वचन इतने सुंदर थे, वो इतने उत्साहित करने वाले, और कितने व्यवहारिक ज्ञान प्रहलाद महाराज शिक्षा दे रहे हैं ये। और जब हम ऐसे भक्तों से श्रवण करते हैं, ऐसे जो उत्तम भक्त हैं, तो फिर हमें वो कथा में और जो उसका सार है, उसका तत्व वो समझ में आता है हमको। So all together I'd like to express our gratitude to Maharaj by taking the circle of the holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्ण महामंत्र की जय। परम पूजनीय भक्ति विघ्नानंद सरस्वती स्वामी महाराज